are you feeling? I'm feeling good, sir. Yes, when you reached here. I reached at morning at 8 o'clock in the morning. Okay, introduce yourself. So my name is Karan Singh. I'm from Corvette City, Ramnagar. I have done my graduation from Kumaon Engineering College in 2020 from Mechanical Engineering branch. My hobbies are playing basketball and volleyball and reading novels. I have done my summer internship from Uttarakhand Transport Corporation, and I have done my project in 3D printing. Yes, okay. Your project is 3D printing, and your what is summer training? So I have done my summer training from Uttarakhand Transport Corporation. Okay, what you did there? So there were different departments. First was engine assembly department. The second was gear assembly department, and the third was fuel injection department, and the last one was tire and glass department. Okay, in which department? I worked in engine assembly department and gearbox department. Okay, what type of gear you have seen at there? Sir, sorry sir. What Can you repeat the question? types of gear have you seen there? Sir, I Types have of seen spur gears, helical gears, and herringbone gears, and okay, bevel gears. okay. And your project is 3D printing. Yes, sir. Your actual name of your project is? Sir, my project was influence of process parameters in the mechanical properties of a 3D printed specimen. Influence of process parameters. Process parameters in the mechanical properties of a 3D printed specimen. Okay. So what are the parameters that affect the 3D printed specimen? So the processes we altered were bed temperature, nozzle temperature, and printing speed, infill density, and rake angle. Okay. Do you know the process of 3D printing? So yes, sir, we worked on fused deposition modeling, in which a polymer was heated and it was added layer by layer. Basically, it was additive manufacturing to construct the final product. Okay. How many methods are there for 3D printing? Do you know? Sir, If position can you please modeling repeat and the question? how many methods are there for 3D printing? There are many types of additive manufacturing, no? Yes, sir. Yes, sir. Sir, we worked on fused deposition modeling and stereolithography technology. Okay. How it is helpful for the current scenario or future? Sir, 3D printing actually is based on additive manufacturing. So it is better than the conventional manufacturing process. As in conventional manufacturing process, there is subtractive manufacturing and a lot of material goes to waste. But that is not the case in 3D printing. It is the product we require for a building up the final product. The material we require for building the final product. That material is only required to build that. No excessive material is required. That is the Yes. prime advantage of 3D printing. But I am asking a different question. Its impact, why we need it, and what are its advantage and disadvantage where we can use it? Why Why we we need need it? 3D printing? Yes. So it is Its impact on the future, how it will affect the technology of the future. so 3D printing is comparatively also faster than subtractive manufacturing. Because in subtractive manufacturing, we manufacture first different parts and then assemble those. But in 3D printing, is the final product is made as a whole in one go. Okay. That is also Its applications, can you tell? sir, and in current scenarios, 3D printed houses have also been made. Otherwise, small equipments are made like any part, like axle of a vehicle. But China is also using it to make homes. It has made approximately 10,000 homes, I think, in 100 days. Okay. Thank you. Next. Thank you, sir. Okay, Karan. Yes, sir. Can you
Can you tell me something about yourself that is not in your resume? Sir, I am a very enthusiastic person, and I love to work in a team. Okay. If we are not going to recruit you in HPCL, what is your reaction? Sir, I will be very unhappy by the result, but as it is said that we should not stick to one thing, but I will try to move forward and I will prepare for upcoming exams. Okay. Okay. Roshan? Sir, I think you are muted. मैंने फॉरवर्ड कर दिया रोशन को. रोशन. Okay, tell me something interesting about you. Sir, sir, I can sing songs. I like to sing songs. Can you sing it here? Yes, sir, I can. Okay. Moving forward, you said your hobbies is volleyball and basketball. Yes, sir. Okay. Tell me the court dimension of volleyball. Sir, volleyball, a single court from on one side, it is 9 by 9, 9 meters by 9 meters. The attack line is from the mid line, it is 3 meters. And the net height is 2.43 meters. And the antenna's height is 80 centimeter above the net. The height of net is same for men or women or different? So it is different. For men, it is 2.43 meters. And for women, it is 2.23 meters. It is a 20 centimeters. Okay. What are the current scenario of Indian volleyball team? Sir, Indian volleyball team currently is not performing that well, but it is ranked 77th as per FIVB, Federation International de Volleyball. And the under 19 team of India is performing quite well. It is ranked 28th internationally. Okay, who is the captain of our team? The captain of our team is Anoop De Costa. Okay. And about basketball, who is the captain? Sir, sorry, sir, I don't know about basketball. Tell me the championship of basketball. Sir, the basketball primarily it is a primary game of USA, National Basketball Association, NBA. Okay. And last question. Yes. Suppose you and your friend are the selected for shortlisted, and one of you will be getting the job. So whom do you think should be preferred? I think I should be preferred because I am a more worthy candidate for the job. How? Sir, because I am enthusiastic, I'm energetic, and I'm a team player. I like to work in a team. And I respect others also. The same qualities he has also mentioned. So then I'd also have good technical knowledge. So I think I am a cut above. I think he has also qualified the exam. Same exam you have appeared for. Okay, thank you. Thank you, sir. My turn now. Yes, sir. Yeah. Hi, Karan. Hello, ma'am. Okay, start. so have you heard term of midstream? Yes, sir. Yes, ma'am. What is that? Midstream refers to the sorry, ma'am, I don't know. Okay. Next question. Why your friends like and dislike you? My friends like me because I'm a very cooperative person. I make friends easily. I can
work in a team. I can work in a team. So, and the most things I think they like about me is my jolly nature. I'm very happy most of the times, and it's like I think I'm sometimes very uh, competitive. So that's I think they dislike about me. Okay. What did you learn in your industrial training? Have you done industrial Ma'am, training? Yeah. yes, ma'am. In my industrial training, I learned a lot of things. I learned about engines. I learned about engine assembly and gearbox and clutches and differentials. Basically, about maximum part of an automobile, of a bus, because I did my industrial training in Uttarakhand Transport Corporation. What type of clutches is used in your training? Like Diaphragm clutch. It was a diaphragm which one? clutch. It was a Okay. diaphragm clutch. Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is my last question. That what have you learned from COVID-19? I have learned many things from COVID-19. I have learned patience. I have most of the important thing I have learned to sit at a place and be content and happy with myself, because I don't have this habit of sitting, of being at my home for maximum time. So this was the first time I have been in my home for the longest time, because I don't like to stay at a place for very long. Okay. Thank you. It goes. Thank you, ma'am. I think सभी का हो गया है पैनल मेंबर से फीडबैक दे दो यार करण को करण का प्रिपरेशन फीडबैक बेकार हो गया। मतलब बिना करण का प्रिपेयर करे इससे अच्छा हुआ था। करण का फीडबैक ये है, यार तुमसे मैंने पूछा कि क्या क्या किए हो वहाँ पे, तो आपने मुझे गियर बताया। सेम क्वेश्चन जया ने रिपीट किया तो आपने उनको क्लच बताया। मुझे लगता है एक साथ सारे बता देने चाहिए थे। ठीक है। हाँ, वो मैं एक चीज बोलना भूल गया था। मतलब मैंने इंजन असेंबली बोला था, वो सब बोला था, एक एक्स्ट्रा बोल दिया वहाँ। हाँ, तो ये चीज, और वहाँ पे प्रोजेक्ट पे, हाँ यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग की, तो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ट्रांसप्लांट के लिए ना, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, उस तरीके से चीजें हम बहुत अच्छे से, बहुत एक्यूरेट चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल 3D कैड मॉडल से सीधे डिजाइन कर रहे हैं ना, तो इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ, और ये तो उसका मैंने पूछा है ना, तो ये भी और था। उसका, हाँ, और मैंने पूछा था कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस पूछ लो, हो सकता है पूछ लिए जाएं, जैसे स्टीरियो लिथोग्राफी, फिर डिपोजिशन मॉडलिंग, और लेजर सिंटरिंग, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इस तरीके से जो उसके 4-5 मेथड हैं, उनमें थोड़ा प्रोजेक्ट हो गए, हाँ, कवर कर लो। और बाकी ठीक है। और आगे बता दो मैं विष्णु। बोलूं हाँ 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 जय बोलो बोलो। क्योंकि मुझे जाना है, मम्मी बुला रही। तो करण आपका अच्छा था, लाइक ठीक है। मैंने एक टर्म पूछा था मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, आपको हाँ वही। नहीं पता था, बट आपने हाँ बोला। मैंने आई पढ़ा था, थिंक वो अगर स्कूल में भूल गया उसमें। यहाँ पे भूल गया, होता नहीं अचानक। ये एक्चुअली आप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और बीच में जो और मिड स्ट्रीम। कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो मिड स्ट्रीम है, देख लेना आप। और कोविड-19 से बहुत कुछ सीखने मिला है लोगों को, तो आई थिंक ये सब लोग एक बार देख लेना कोविड-19 वाला। ये पूछ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और ये फ्रेंड्स लाइक यू डिसलाइक यू आपने बताया था, बट थोड़ा सा लगा मेरे को कि अ, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे थोड़ा इसके लिए। बाकी हाँ, अच्छा था। या ओके, थैंक यू। अभी मैं दे देता हूँ। मेरे यार ऐसा कुछ पूछा तो था नहीं। वो लास्ट क्या? वाला क्वेश्चन था, वो भी तुरंत ही फ्रेम किया था मैंने हाँ, कि यार वो ऐसा तो वो पूछ सकते ना कि यार तो सेम क्वालिटी उसने ही बताई, तो मैं सोचा एक बार हाँ। देख लेते क्या होता है। ये क्वेश्चन मुझे सॉरी, मुझे आया ये बहुत नहीं पसंद समझ, है। क्वेश्चन क्या है मैं एक्चुअली, मुझे समझ मैंने नहीं आया, पढ़ा क्या हुआ बोलूं है। क्या मैं। क्या? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है जो आपने लास्ट में पूछा था ना, ये मैं रखने हाँ, वाली थी अपने इसमें, लेकिन आपने पूछ लिया तो। अच्छा तुमने ये भी रखना था क्या कि सेम बोला उसने भी, फिर क्या करेंगे? क्या?
मैंने है? लास्ट में बोला ना था कि जो भी क्वालिटीज इसने बताई कि मेरे को इसलिए रख लो, हाँ तो मैंने मतलब बोला ये कि क्रॉस सेम क्वेश्चनिंग में फ्रेंड ये नहीं बताया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। हाँ, जैसे दो हाँ बंदों में आपका फ्रेंड है, सेम क्वालिटी है, तो हम आप बताओ कि किसको रखें, ये वाला क्वेश्चन। और एक ये इंटरेस्टिंग अबाउट यू, ये मेरी लिस्ट में भी क्वेश्चन था, बट हाँ अच्छा था। एक्चुअली अपन दोनों की ना लिस्ट सेम है, योर पीडिया। हाँ लिस्ट तो सेम ही मुझे है। लगा कि तुम वो गाना गाने के लिए बोल 125 रहे हो, मैं गाना गाने वाला था अभी। वो हार्ड नहीं मैं से बड़ा एक्चुअली बोल देता, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे ना आवाज ढंग से सुनाई देगी नहीं, तो एचपीसीएल में ही सुनेंगे, तो वो जो इसलिए फिर मैं आगे बढ़ गया। बाकी तो वॉलीबॉल वाला एक्चुअली मेरा भी है, तो मुझे आइडिया था उसका, इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया उसपे। बट मेरे को पता नहीं क्या वो कैप्टन वाले पे थोड़ा डाउट था, क्योंकि मैंने जब गूगल किया तो मेरे को कुछ और दिखा। एक बार कंफर्म कर लेंगे दोनों उसका। हाँ मेरे को ठीक है, तो बाकी नोटिस बाकी क्रॉस मैंने तो ऐसा डाला। कुछ खास पूछा नहीं था। मैं सोचा एचपीसीएल के बारे में सोच क्या कहते हैं उसको पूछूं, लेकिन फिर मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा। मैं सुबह से वही रट रहा था, एचपीसीएल का ही साइट वगैरह अरे सब कोई देखा नहीं, अब रहता पूछ लेते हैं ना, सबका रिवीजन हो जाएगा। नहीं, पहले पहले विष्णु का फीडबैक ले लेते को हैं। भी दे देने दो फीडबैक। हाँ भाई, मैंने एक है। क्वेश्चन पूछा था और ना। एक चीज ये कि जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, यार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि टेल क्या मी क्या क्या? अबाउट टेल। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आई करण। हाँ मैं अब बोलो, मेरे को आवाज आनी रही थी पहले। अच्छा ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना तुमसे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट इज नॉट इन योर रिज्यूम। हाँ मैंने एंथुसियास्टिक बताया था शायद, एनर्जेटिक। हाँ मतलब थोड़ा सा तुम और भी बता सकते थे कि हाँ अगर वो पूछ रहा ना कि एक एक मतलब वर्ड बताने से अच्छा ना थोड़ा सा तुम बताओ, क्योंकि क्या तुम्हारी जिंदगी में बस इतना ही है, एक ही वर्ड उस रिज्यूम के अलावा, तो वो अरे तुम थोड़ा सा मेरा ना। डायलॉग रिपीट कर रहा है विष्णु सेम। अरे नहीं यार, तो वो उधर थोड़ा सा तो बढ़ा सकते हो और भी ऐसा कहीं कोई अचीवमेंट हो जो उसमें तुमने ना दर्शाया और लिखा हो, तो वो भी तुम वहाँ थोड़ा सा बता सकते सही हो। बात है। सीटीसी, उस पे सीटीसी याद आया भाई, इससे पूछा था ना हमने। कहता नॉट माय सीटीसी। नहीं, उस पे मैंने वर्क कर लिया, उसका मेरे पास बहुत सॉलिड आंसर है, उसमें मैंने पूरा वर्क कर लिया है। मैं अरे इनफेक्ट तभी तो वर्क मैं करेंगे अभी, जैसे वो सारे कैंडिडेट्स के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसको रात में बैठ के लिखता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ, तब जाके उसका आंसर निकाल पाता हूँ। लेकिन ठीक है, अब देखो मेरे भी दो फीडबैक है करण। एक तो आपने मैडम को सर बोला था, याद होगा आपको भी, है ना? फिर आपने हाँ वो ट्राई हो करो। जाता है, उतना नहीं हाँ होना अरे चाहिए वो बीच हो इतना जाता है में यार बीच में वो। गलती से बोल दिया, फिर बाद में मैं नहीं, आपका। ट्राई करो, और बिल्कुल तुमने ना गुड हो, मॉर्निंग भी बोला था। बिल्कुल ना हो ये मिस्टेक, ऐसा ट्राई करना बिल्कुल अवॉइड, है हो ना? सकता है वो और नोटिस ना करे, लेकिन तुमको दूसरी चीज अगर आप आंसर में ब्लैंक हो गए, नहीं आ रहा है ना, तो दीवारों को नहीं देखना इधर उधर। जो इंटरव्यूअर ने आपसे आंसर पूछा उससे आई कांटेक्ट रखना है, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सिस्टमेटिक बंदा है, थोड़ा ठहराव है इसकी हाँ जिंदगी में, है ना? ऐसे ऐसे नहीं करने हम्म, लगता है। ठीक है, ये दो पॉइंट है ओके। जो मैंने नोट किए। क्योंकि आप जब अच्छे सर को पॉइंट है। मैडम बोल रहे हो ना, तो मतलब वहाँ पे मैडम को सर बोल रहे हो, वहाँ पे ये दिखा रहा है वो कि ये थोड़ा मतलब बंदा जो है अडेप्टेबल नहीं है इतना ज्यादा, अलर्ट नहीं है। अलर्ट नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है, मतलब घबराहट है इसके अंदर थोड़ी बहुत, वो सब दिखाना नर्वसनेस है हो जाता है, आता हो है। जाता है। ना। हाँ, थोड़ा वर्कआउट करना, घबराहट तो मोस्ट ठीक है कॉमन तो। मिस्टेक है ये, अरे मोस्ट कॉमन। वर्क कर, लेकिन बाई चांस अगर वहां गलती से फिर भी निकल जाए ना, तो उसका लोड नहीं लेने का कि उसके चक्कर में डिप्रेस वगैरह हाँ क्या बोल दिया, लोड मत लेना, ये नहीं बाकी करने ये का। है कि थोड़ा वर्क कर लेना। ये जो हाँ एक्सप्रेशन है ना, कंट्रोल है, माइंड है, आईज है, इसको पूरा वर्कआउट करना। ठीक है, ये था। नहीं, मेरे को सही लगा, मतलब फ्लो बढ़िया था वर्ड का, जितना फ्लो बोला बढ़िया और सही एक मस्त वो बोला। और आवाज हाँ थोड़ी वो सही ऊपर, था। आवाज थोड़ी ऊपर, पिच थोड़ा हाँ बढ़ा। थोड़ा सा आप ना लाउड करो थोड़ा सा, क्योंकि पैनल भी दूर रहते हैं, तुम्हारी सॉफ्ट आवाज है ना, तो उसमें थोड़ा सा अगर ऊंचा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और जिस जो पिच बढ़ा है अपना, वो ध्यान रखना कि थोड़ी स्पीड कम करना, नहीं तो पूरा खिचड़ी हो एक जाएगा। एक बात और, जैसे अभी हमने वो वीडियो देखा था ना, तो उसमें लिखा था कि आप इंटरव्यू को ऐसे करें, ऐसे ट्रीट करें जैसे आप उसको एंजॉय कर रहे हो। तो ये चीज हम हाँ अपने अपने सेशन में और तो मैंने ऐड बोल कर ही दिया सकते ना हैं, कि क्योंकि इतना मोनोटोनस थोड़ा नहीं। टोन स्माइल, मत रखना। थोड़ा स्माइल क्या? रखो और हो गया वो सब। समझो गेट के बाद पीएसयू के बहुत सारे कॉल आएंगे, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। हाँ। नहीं तो आएंगे ना और उस भाई। वाले मोनोटोनस टोन मत रखना, अपना रटा रटाया हो, ज्यादा स्ट्रेस में आ रखा हूँ मैं ऐसा, है ना? हाँ और एक था कि आप करण को जब ऐसे पूछा गया, ऐसे कर सकते रिप्रेजेंट, जैसे आप अपने क्वेश्चन, अपने आंसर्स को ही एंजॉय कर रहे हो, तो एक्सप्रेशन से हमेशा कांस्टेंट एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं, मतलब सही समझ में नहीं आते।
थोड़ा पर्सनालिटी वगैरह थोड़ा आप हैंड मतलब एक्टिविटीज भी कर सकते हो हैंड्स की, नॉट खड़े Movement. होके भी। हाँ उनसे जितना ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यूअर से। हाँ हाँ हाँ। एक क्वेश्चन था अच्छा जब करण से पूछा एक गया बात तो है था। यार, देखो एक बात मैं बोलूंगा कि जब हम लोग फीडबैक देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई प्रोफेशनल बंदा दे रहा है, लेकिन जब सब सामने वाला खुद दे रहा होता है इंटरव्यू तो उसके जो भी फीडबैक से वो खुद पे वो लागू होते नहीं है। वो तो है। टू एक प्रैक्टिस एक क्वेश्चन जो करण से मैं पूछा हूँ था इस कैटेगरी में। नहीं, बहुत सारे हम पता है। सारे ही हैं उसमें। नहीं, जया का तो पता पता ही नहीं दूसरी- चलता है, जया का तो वीडियो ऑफ ही रहता है हमेशा, उसका कुछ पता नहीं Here- चलता है कौन बोल रहा है उधर। ये रिकॉर्ड साइड। सुनो भाई, एक क्वेश्चन था जिसका फीडबैक मैं देना चाहूंगा करण को। जब करण से पूछा गया व्हाट इफ वी डोंट सेलेक्ट यू, ठीक है, हाँ अभी भी आपका आंसर ऐसा लगा, मतलब आपने पोज दिया था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दुख दिखाया वहां पे, लेकिन अभी भी कॉमन आंसर था। आपने कहा मैं बाकी पीएसयू की तैयारी करूंगा, एक्सपेक्टेड लग रहा था कि आप ये एक्सपेक्ट करके आए हो, ठीक है, इसको और इम्प्रोवाइज करो। मैंने कहा था ना पहले कैसे कि सर पहले तो मैं और मेरी फैमिली बहुत दुखी होंगे सर, तो उसके बाद थोड़ा फिलोसॉफिकल लाइन के सर बट लाइफ गोज ऑन सर, है ना, इस तरह से फ्रेम करो और सबसे लास्ट में करियर ऑप्शंस पे आओ। आपने पहले ही बता दिया कि सर मैं तो इसके बाद ये सोच के बैठा हूँ कि अगर ये नहीं होगा ना तो मैं ये कर लूँ, तो वो हम ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे हम सोचने लगे होंगे अब क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 मिनट 1-2 मिनट का टाइम लेके ये आंसर कर सकते नहीं, हैं 1-2 मिनट कि बहुत भाई ज्यादा वहाँ हो पे जाएगा। इतना- ज्यादा हो 5-6 जाएगा, सेकंड, ज्यादा हो 5-6 जाएगा। सेकंड, आई मीन बस थोड़ा सा टाइम लेके, मेरा कहने का 5-10 मतलब सेकंड थोड़ा बहुत सा है। टाइम गला 5-10 थोड़ा सा सेकंड। गला थोड़ा सा साफ कर हाँ। लेना सर। सर पता यार इसका मैंने थोड़ा सा देखा था ना, तो पहले बोलना सर पहले मैं तो अपने लिए मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होऊंगा, और फिर मैं अपनी मतलब वो जहाँ पे मेरे साथ कमियां रह गई थी, मतलब वही डिप्लोमेट आंसर है कि देखूंगा उसको आइडेंटिफाई करूंगा It will be नेक्स्ट टाइम very में hard to comprehend for me that I अरे don't विक्टिम कार्ड खेलना है भाई, सीधा सीधा। हाँ। उसको ऐसा बोल सकते लगना हैं कि उसको लगना चाहिए कि आप दुखी हो, है ना। हाँ बोलो, हाँ। मैंने लॉट ऑफ एफर्ट पुट किए, इसमें बहुत सारा हम टाइम दिया, अब एक्सप्रेशन नहीं से होगा बता तो। सकते हैं कि हम दुखी हो गए आपके इस क्वेश्चन से। नहीं हाँ ऐसे वही कैसे रोने बोल रहे हो? लगना, अरे उधर ही रोने लगना। अरे नहीं, मैं तो कहूँगा करण गाना गा सकता है, कोई सैड सॉन्ग गा देगा। पर पहले पूछ लेंगे आंसर, और उसका आंसर तो ज्यादा रोशन की वही जो मतलब दोस्त अरे को मैं भी select ढूंढ करें। रहा हूँ भाई। मैंने कहा वो आप क्या बोल रहे सडनली हो, प्लान हो technical गया वाले। मेरे को। आधा ही क्वेश्चन याद था कि हाँ अगर दोनों का सेम मतलब दोनों ने मैं चूज करना है तो ठीक है, तभी एकदम से दिमाग में आया कि भाई उसने भी यही कहा है, ये क्या है? तो फिर क्या क्या बोलेंगे। तो मुझे पता तुम ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्या पूछ दिया। देखो मैंने उस क्वेश्चन पे भी टिक करके इस रखा था, क्वेश्चन ये में क्या कर पूछूंगी। सकते हैं ना, मैं बताऊं सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगी। पहले तो तुमने आंसर, जैसे रोशन ने 3 बार पूछा था, 3 पार्ट में पूछा था, जैसे जैसे तुम आंसर करते आ तीसरे रहे वाले थे blank वो को फंसाता जा रहा था, तो तुम इंटरव्यूअर की हाँ। तरफ स्माइल कर देना कि सर आप तो मतलब फंसाए जा रहे हो, थोड़ा सा मतलब ऐसे सर इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ा था कि मजा है थोड़ा, तब उसको भी लगेगा कि हाँ मेरी हाँ बात समझ रहा है, थोड़ा चालू बंदा तो है ये, खिड़की ले रहा है मेरी। अब फिरकी ले रहा है, भाई तो थोड़ा हंसते मैं मान मुस्कुराते गया तो कि रहना ही है। माहौल आप है ना, आप जीते हमारे। बहुत तेज बताए थे इंट्रो, थोड़ा आराम से बोलना और लिखना भी होता है। क्योंकि तुम्हें पता तो चल गया ना इसमें कि ये तुम्हारे आंसर साथ कर खेल सकते रहा है हैं वो, क्या? तुम्हें पता चला क्या? कि ये चल आंसर क्या? मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें ये आंसर कर सकते हैं क्या, जैसे कि हम अपने फ्रेंड मतलब इसमें ये नहीं लिखा आपका बेस्ट फ्रेंड हो या आपका गुड फ्रेंड, इसमें जस्ट लिखा है आपका फ्रेंड। तो हम ये कि जैसे हम अपनी खुद की इनर क्वालिटीज जानते हैं, हम उसकी नहीं जानते, तो हम अपना एश्योर कर सकते हैं कि ये अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो हम अपना 100% देंगे, ऑल एफर्ट्स मतलब देंगे, तो ये हम तो वही उसकी डिप्लोमेटिक गारंटी है। नहीं ले भाई ये वो तो ये कॉमन नहीं ही हो नहीं गया ना। फिर वही बोलेगा ना, वो बोलेगा कि वो भी ये बोल रहा कि वो भी भाई 100% मैं बता देगा। रहा हूँ ना तुम्हें, सबसे बढ़िया चीज क्या है, तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारे साथ खेल रहा है, तो थोड़ा मजा दो, अब थोड़ा हंसो, थोड़ा सा स्माइल मारो, थोड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आने दो, और फिर अपने आप हिंदी में आ जाना कि सर मेरे अंदर ये है, हो सकता है सेम क्वालिटी हो, लेकिन द वे आई लर्न द और थिंग, द डेप्थ आई इन द डेप्थ, मैं जो चीजों के अंदर जाता हूँ वो सब क्वालिटी सर मेरे को लगता है कि मेरे को यूनिक बनाती है बाकियों से, इस तरह से आप। जैसे ये है अच्छा ना कि जैसे हम स्ट्रेंथ कंसिडर अपने मैं ये लिखते हैं बोल ना। शुभम मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सर
मतलब मुझे तो सर उसके बारे में पता है, वर्किंग तेरे पास एक्सपीरियंस तो है भी तो। वो है ना, क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड एंट्री। अरे नहीं, उसकी नहीं बोल मेरे सकते पास हैं। तो ये है कि सर आप अभी चलो साइट पे, परमिट दो हाथ में, मैं बताओ क्या हाँ, करना है। तू रुक का इक्का हाँ निकालेगा तू तो ले। हाँ कि सर तो मैंने वही 3 साल वहां पे पूरा प्रोजेक्ट संभाला है, इस भाई प्रोजेक्ट तेरे पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात, उनको पता है। फिर वही चेप देगा कि सर मतलब नहीं, उससे अगर मैंने मतलब अपने आप वर्क उसको अभी रिलेटेड ट्रेनिंग सही दोगे सही बता दिया ना, तो मतलब। मेरा सिलेक्शन तो वहां पे 50% हो ही गया इंटरव्यू। लेकिन मैं वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ, मान लो उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड ज्यादा बात की ही नहीं, जनरल एचआर क्वेश्चंस पे ही रहे, तब क्या हुआ मेरा? अरे कुछ नहीं होगा यार, चिल रहने का है, खत्म। एंजॉय द कुछ प्रोसेस। एंजॉय द प्रोसेस, अंदर रिजल्ट इज घुसने द के बाई बाद तो प्रोडक्ट। मैं कभी ज्यादा कभी हम आंसर नहीं दे पाते ना, लेकिन हम अपने जिस तरीके से, जो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, उससे ही अगर वो लोग इम्प्रेस हो जाए तो काफी है। जैसे तुमने सॉरी भी कहा ना बोल कि सकते आंखों में आंखें डाल के बैठे रहो, मुस्कुराओ, प्रेशर में भी मुस्कुराओ, तुमको पता है कि बहुत प्रेशर में, लेकिन फिर भी तुमको मुस्कुराना है, अरे नहीं सर झेल लेंगे कोई बात नहीं। तो नहीं, बस वो यार, वो पहले हर क्वेश्चन का कंफर्टेबल आंसर नहीं करते चाहते हैं। हैं, वो सर कर चाहते हैं कि लेंगे बंदा कैसा है बस। सर कर वो लेंगे। दरवाजे के अंदर जैसे ही अंदर जाओगे सब भूल जाते हैं वहां पे। और जैसे अरे नहीं भाई, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई तभी भूलना तो नहीं है, प्रैक्टिस मुंह कर से निकलने ये चीजें, ऐसा मत बोलो भाई कि अंदर अरे जाके समझे। ये तो वही वाली हाल है ना रोशन, ये वही वाली हाल है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच था, रोहित शर्मा भी हाँ पहले खूब मारे, केएल राहुल भी पहले खूब मारे, और उधर खड़े फॉर्मेट हुए तो सारे जीरो ज्यादा पे आए। डिस्कशन हो गाइस, रहा एक बात बोलूं, हाँ। जैसे मैंने सिर्फ पीएचडी के इंटरव्यूज दिए हैं, खैर ये मद्रास बॉम्बे वगैरह के। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग पीएसयूज में इस टाइप के लोग भी होते हैं जो इंटरव्यू करने के लिए जो बैठते हैं पैनल। तो वो पता है कंफर्टेबल करने के लिए ना आपकी लोकेशन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आपका नाम का मतलब तो ठीक है, लोकेशन आसपास, जैसे मेरे से पूछ लिया था कि नियर बाय कोई फॉरेस्ट है क्या, कोई नेशनल पार्क है क्या, तो हम अपनी लोकेशन और ये थोड़ा नियर बाय एरिया को भी अगर जान ले अच्छे से तो हाँ सही वो तो रहेगा। जानना ही है यार, वो पूछते हैं हाँ। एक्चुअली में कि आपके सिटी का क्या फेमस है। तभी तो मैं बोला तो है, अपने जो भी है ना वो रिज्यूमे, उसका एक एक वर्ड को पकड़ो और उसका पूरा एनालिसिस कर दो, सारा इंटरव्यू वहीं पे है। मैं तो कह रहा हूँ ना, एक बार फिर से अपनी रिज्यूमे बना लो, एक एक वर्ड का एनालिसिस करके। अबे एक बार नहीं, अभी तो 5 बार बनेगा वो। अरे भाई पता है ना कि 3 बार एडिट करोगे तब जाके निकलेगा, अगर नहीं हो रहा ना एडिट तुमसे तो समझ जाना गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, इतना और बता देता हूँ कि अगर एडिट नहीं कर पा रहे ना लिखा हुआ है आंसर एक बार, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं तो फंडामेंटल मिस्टेक है, क्योंकि तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसने वाले हो। क्योंकि एक बार प्रॉब्लम में नहीं ऐसी आ रही। चीजों का आंसर कभी फ्रेम हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी वो भी खुद 2 बार एडिट की है। इंटरेस्ट को मैंने पूरा आधा घंटा दिया है, तब जाके मेरा इंटरेस्ट निकल के आया है, बढ़िया वर्ड्स निकल के आए उसमें। ठीक है। और जो कल इसने भेजा था ना प्रियांशु ने, नेट सर्फिंग वगैरह, ये हटा देना भाई ओबीज से, है ना, इसकी जगह कुछ अच्छा हाँ, इंप्लीमेंटेशन वर्ड लेके आना। ठीक है। और अगर तुम्हें किताब पढ़ने का ही शौक है ना भाई, अभी टाइम है, तुम 4-5 किताब पढ़ सकते हो, हिंदी वाली छोटी छोटी पतली पतली पढ़ लो, प्रेमचंद की पढ़ लो, किसी की भी पढ़ लो, बोलने के लिए तो रहेगा, हाँ पढ़ा है सर ये, इसमें से कुछ अरे भी यार पूछ वो लो। ऑडियो बुक पढ़ ले यार, देखो अगर वो बुक नहीं पढ़ने का मन करे ना, ऑडियो बुक पढ़ ले, चीजें तो हाँ, तुम्हें ऑडियो। भी पता चल जाएगी। बस मेरा खत्म। इंटरव्यू कल लोगे या आज ही लेने वाला हूँ, क्या सीन है भाई? तुम्हारा कर लेंगे। ठीक। कर तुम्हारा लेते करते हैं। हैं ना, इंटरव्यू भूख भी लग रही है, डिनर का भी टाइम हो गया है, कल तो भाई करते हैं। और हाँ भाई 2 घंटा तो मिनिमम देना पड़ेगा, तो आप टाइम बता हाँ दो, 8 से करना है कि 7 से करना है? भाई और 7 8 से ठीक 10 रहेगा यार। 7:30। 7 से करना है क्या? 7:30 से 9:30 कर लो अगर ठीक है पॉसिबल ये हो टाइम। तो। हाँ ठीक है, वो 7, साढ़े टाइम 7 से सही है, ठीक है। 7:30 ठीक बजे। है सर सर। 7:30 से 9:30 सही है। ठीक है। ठीक है ये time। सबसे लेट किसका इंटरव्यू है? सबसे आखिर में? विष्णु। अबे भाई नहीं हाँ नहीं सब अपने अपने इंटरव्यू मेरा तो डेट बता दो एक एक करके, प्रियांशु अरे बता। नहीं, चैट में लिखो, चैट में लिखो। अरे पता अरे ही ऐसे ही नहीं बोल यार, देना यार, बोल रहे जल्दी आते बोल। हैं। इतना ही फॉर्मल हो जाते तुम तो। मेरा विष्णु का मेरा सेम है 22 दिसंबर है, उससे लेट किसी का हाँ है क्या? रुको रुको 22 रुको भाई दिसंबर। रुको, प्रियांशु बता रहे हैं पहले, रुको। हाँ प्रियांशु बोलो। हाँ मेरा और विष्णु का सेम है, 16 दिसंबर लखनऊ में है, गोमती नगर में। ठीक है। बहुत बढ़िया। भाई रोशन का लोकेशन बताए? भी सेम है। रोशन मेरा का 10 को है, करण का 1 को है दिल्ली में। 10 का और 1 को। ठीक है। 10 दिसंबर 1 दिसंबर। उपेंद्र का कब है? 22 दिसंबर।
मुंबई। नाराज हो गया क्या तेरी। भूपेंद्र? 20 seconds बाइक का था। बाइक पर से एकदम बहुत लास्ट में। टाइम है यार। 27 दिसंबर दिल्ली, 22 है 27 है? 22 22 22 मुंबई। दिसंबर मुंबई ना, ठीक है ओके। और जया का कब है? मेरा 1 दिसंबर भोपाल में कहाँ क्या? पे? भोपाल अरे, भोपाल। भोपाल में। जया तुम एक चीज और देख लेना ना उस दिन कौन सा डे है, क्योंकि बहुत फेमस डे है। पूछेंगे ना कि 1 दिसंबर कौन सा डे है, कुछ पता हाँ है? ये हाँ वाला हाँ, मैं, वो एमपी ये का ही वाला है, और देख अपनी बर्थ लूंगी। डेट वाला है ना, हाँ, मुझे याद है। किसके साथ शेयर करते बर्थडे हो तुम, पे कौन तो कुछ महान नहीं है, अनुभव है? लेकिन हाँ। मैंने तो अपना क्रिसमस। देख लिया भाई, कोई लोड देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है उस दिन 27 अक्टूबर को। ज्यादा कुछ फेमस नहीं है, एक आधा कुछ डे है, वो इमिग्रेंट डे कुछ है ना। मैं खुश मेरा हूँ। क्रिसमस पे। चलो बढ़िया हुआ अरे कुछ। क्योंकि वो लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में कोई पढ़ते इंपॉर्टेंट हैं होता ना, है तो आ बिल्कुल। जाता है, हाँ वही। तो फिर और वो लपेटते मेरा हैं। मेरा 24 नवंबर को है मुंबई, तो आई थिंक सबसे पहले मेरा ही है यार। और हाँ भाई यार, जिसका आके भी हो ना, बताना। उससे पिछले कम से कम एक वीक का ना फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चल रहा हो अपने इधर उधर, उसको पढ़ लेना। मैं तो कह रहा हूँ भाई अभी तुम से यार चालू क्रिसमस कर पे दो क्या क्या पढ़ना। पूछ सकते हैं? अभी तुम से यार तो ना यार 10 टाइम ही नहीं है तारीख इतना। शुभम, तुम 10 तारीख से ना द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर देना। हाँ भाई बेटा हिंदू की जरूरत नहीं है, यूपीएससी लिखने थोड़े जा रहा है, अरे आइडिया नहीं, होना चाहिए क्या वो चल लोग, रहा है। अरे वो लोग वही पेपर पढ़ते हैं, फ्रंट पेज और मतलब लास्ट वाले जो एक दो पेज हाँ होते हैं ना, ऐसा बस नहीं है, उसी में विष्णु देख सब लेना। हिंदू ही पढ़ते हैं एमडी में भाई। वहाँ टाइम्स ऑफ 4-5 इंडिया, पेपर होते हैं भाई। टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा। सबसे कॉमन है, और इकोनॉमिक्स इंडियन टाइप एक्सप्रेस, द हिंदू के वहाँ 24 तो के वैसे भी बाद लखनऊ में है। द हिंदू 24 का के बाद न्यूज, पुराने। द हिंदू का न्यूज सबसे लेट आता है पहली बात तो, और सबसे ज्यादा वो यूपीएससी वाले ही पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। भाई दैनिक 24 जागरण पढ़ो, खुश रहो। 24 के बाद 20 दिन पढ़ा देना, वो सही हो जाएगा। पढ़ा का देंगे भाई, पढ़ो भाई बैठ के। भाई 24 तक कंप्लीट करके जाऊंगा सिलेबस, तुम लोगों का भी और खुद का भी। मैं को थोड़ी ना आधा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा वहां पे। अरे नहीं, 24 24 तक हम खत्म कर 24 नहीं देंगे। भाई, 10-15 तक खत्म कर देंगे सब। 15-20 तारीख सारा तक चलेगा समेट देंगे, इंटरव्यू। 15 तक समेट देंगे भाई सब कुछ। उसके बाद थोड़ी सी तो फिर लग रही है। बचेगा भी नहीं, फिर तो टाइम वेस्ट होगा। इंडिविजुअली तैयारी करना तुम, और फिर तुम लोग आपस में डिसाइड करके बीच बीच में इंटरव्यू करते रहना, एक दूसरे के सेशंस लेते रहना। दिक्कत किसको अपने तो फिर आएगी, जैसे एग्जाम भी आ भूपेंद्र जाएंगे का यार। 22 दिसंबर है, वो बिल्कुल पीछे ही चला गया है, ठीक है। भाई मैं 27 नवंबर बाद बिल्कुल फ्री हूँ, एमटेक के पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद करते ही फ्री है वो। 4-5 जो भी है, फिर तो वेले बैठे हैं। फिर तो एचपीसीएल में मैं, चलेगा, शिव, थोड़ा फ्री दीपक। काम भी करने को तैयार हो गया। ये सही है, मेरा तो 30 नवंबर को एग्जाम खत्म हो रहा है, और कौन सा 1 कॉलेज तारीख है? को ये धनबाद, IIT धनबाद। तो तुम्हारा 30 नवंबर सही को है, सही। पेपर है, तो तुम एक को कैसे वहां पे इंटरव्यू देने जाओगे? अब देखूंगी, मैं बात करूंगी कि वो जैसे एक स्लॉट दिया है ना, तो हम अपने तरीके से देख सकते हैं कि मतलब 4 एग्जाम है तो आगे रख लेंगे, 2-3 दिन फ्री करा लूंगी। अरे धन्यवाद, बुला लिया पता क्या? नहीं मेरे अकॉर्डिंग होगा कि नहीं, कि मैं ही बस हूँ, बाकी तो सब लोग PhD के लिए डेडिकेटेड है। देख भाइयों, लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो जो फॉर्म है उस पर वर्कआउट करो और उसको भर देना। लास्ट डेट शायद उसका कुछ दिनों का ही रहेगा, 8 या 10 तारीख तक हाँ देंगे शायद लास्ट डेट उसको, है ना। भाई, कल कल कितने बजे मिलना है? कल भाई 7:30 7:30। बजे शाम को मिलना है, और जीटी के लिए एक ही करते हैं कल जीटी से। 5। कल 5-5:30 शाम को। कल का ठीक है। टॉपिक क्या है भाई पढ़ने का? कल का टॉपिक पहले तो इंटरव्यू लेंगे, जो बच गए हैं, अनिल है, शिव है, मैं हूँ, और एक आधा और बचा है, दीपक बचा है, उसका इंटरव्यू हम 4 का हो जाएगा। और उसके ठीक है, बाद फिर तो में क्या इंटरव्यू हो करना, जाएगा। हाँ क्या करना है वो तुम बताओ। अब यार ना, अब हमें कंटेंट पे ज्यादा और थोड़ा बातचीत पे कम ध्यान देना है, थोड़ा सा ना हाँ वो टाइम वही, भी सेव करना है, हम वही मैं स्ट्रेटेजी कह रहा ज्यादा हूँ। बनाते हैं, काम कम करते हैं। भाई टाइम से हाँ, ज्वाइन कर काम कम लिया कर, करो, 15 मिनट तक तो पड़ा ही रहता है लिंक ग्रुप में। बस वही तो यार, टाइम हाँ से इंटरव्यू लो, हाँ, चलो फटाफट भाई काम खत्म होगा। करते हैं, कल कल आते हैं। चलो भाई, सही फिर बात मिलते है। हैं, बाय सब लोग। ओके विष्णु ने बाय, गुड पॉइंट की नाइट। बात बोली है, गुड बाय, बाय गुड बाय। बाय।